It is today third day of your lesson, the Albert Einstein at school, and up to here you came to read how Albert was uninterested in his study, and more than this, how he was trying to return back to his home from study by giving up his study at school. But there was great problem for him, that was his father, who wanted that his son must take diploma degree, but Albert was not interested even taking in the single diploma certificate. For this purpose, he makes plan with his friend as a nervous breakdown plan, and whether he succeeds we must come to know by reading this further. So page number 29 first line, page number 20 line first line. I don't really know how to describe my trouble, Dr. Well, he began. When doctor came to see Albert, he found that his nervous system was break down because he thought many and many times becoming in so psychological pressure. What would he tell to the doctor? That he really realized breakdown of the nervous system. So when doctor asked what happened that, then he replied that I don't really know how to describe my trouble. Then Albert said that he was really not knowing in which way he should describe his problem. Don't try, said the young doctor with a friendly smile. Yuri has already given me a history of the case. Then that doctor suggested not to be worried about his problem, and further he informed him, Miss Doctor informed to the Albert that his friend, Miss Albert's friend Yuri, had already told doctor all the history of that case. Oh, what did he say? Then Albert, being surprised, exclaimed, what Yuri was said, told to the doctor? Only that you want me to think you have had a nervous breakdown and say that you must not go back to that school. Then that doctor replied that Yuri had told him that Albert wanted to take relief from going to the school. Means Albert did not want to go to school, and for this purpose that doctor also had to pretend that Albert was suffering from the nervous breakdown, and it was necessary for him to stay and take a best rest by staying at home and not to go back to the school. मतलब बताया वेल कि तुम्हारे दोस्त ने बताया है कि तुम स्कूल नहीं जाना चाहते, इसलिए नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम कर रहे हो और तुम वापस घर जाना चाहते हो, और यही मुझे लिख कर देना है कि इसे बेड रेस्ट की ज़रूरत है, न कि वापस स्कूल जाने की ज़रूरत है. ओ डियर, एल्बर्ट फेस फेल, ही शुड नॉट हैव टोल्ड यू दैट. एल्बर्ट ने कहा, अरे यार ये क्या किया, उसने बता दिया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था. व्हाई नॉट, इज़ नॉट इट ट्रू देन? डॉक्टर सेड व्हाई नॉट, इंट्रोगेटेड. डॉक्टर कहा, अरे क्यों नहीं बताना चाहिए था भाई, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं जानूंगा तभी तो तुम्हारी हेल्प करूंगा. Yes, that's the trouble. Now you will say there is nothing wrong with me and you will tell me go to back to school. Then अल्बर्ट कहा कि अरे यार अब तुम जान गए तो इन्हें कहो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वापस स्कूल जाना चाहिए. डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, सेड द डॉक्टर. डॉक्टर कहा, अरे नहीं ये सब चीज़ भूल जाओ, क्यों इतना आगे सोच रहे हो. व्हाट वाज नीड टू थिंक हिम ओवर सच प्रॉब्लम मैटर सो डीपली. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मीन्स इन रियलिटी, वास्तव में, सच्चाई में. आई एम प्रेटी श्योर यू आर इन अ नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल. डॉक्टर सेड दैट, वास्तव में डॉक्टर वाज आल्सो थिंकिंग दैट एल्बर्ट वाज रियली इन द प्रॉब्लम ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन सिस्टम. एंड in relation to the school, he was seriously nervous breakdown and there was no need to go back to the school. But I have not told you anything about it, said Albert. Why died? How can you know that? Again Albert
told well doctor that Albert had not told anything about that to the well doctor. Then how did he come to know? उसे कैसे पता चला? Then doctor replied, because you would not have come to see me about this if you had not been pretty close to a nervous breakdown. That's why now, said the doctor briskly. Briskly means little bit smile देते हुए और कुछ पूछ पानी मारते हुए, मीन्स एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हुए डॉक्टर कहा कि क्योंकि अगर तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम ना होती तो तुम मेरे पास नहीं आए होते, इसलिए मुझे पूर्ण रूप से पूरा विश्वास है कि तुम्हें नर्वस प्रॉब्लम है स्कूल से रिलेटेड. If I certify that you have had a nervous breakdown and must stay away from school for a while, what will you do? Then the doctor interrogated Albert. If doctor would certify that Albert was really in nervous breakdown problem and he must take rest than to go to the school, then what would Albert do for him? I will go to Italy, said Albert, to Milan where my parents are. Then Albert replied that he would go to Italy, near to his parents. And what will you do there? Doctor said, I shall try to get into an Italian college or institute. Then Albert replied that he would try to take admission into the Italian college or institute. Any. How can you without a diploma? Then doctor asked, without diploma, how could Albert take admission in Italy school or college? I will ask my mathematics teacher to give me something about my work and perhaps that will be enough. Then Albert said that he would take help in the matter of diploma with his math teacher, and math teacher would certify him with the diploma, and then that would be the sufficient to take admission in the Italy. I have learnt all the maths they teach at school and a bit more, he added when Dr. Well looked doubtful. And further, Albert told that whatever was taught by the math teacher, Albert had learned. So Albert was sure that that math teacher would give him diploma. Now Dr. Well was doubtful, yet Albert was sure. Well, it's up to you, he said. It's up to you, me. इट डिपेंड्स ऑन यू. डॉक्टर कहा ठीक है, तुम पे निर्भर करता है, तुम्हारा मैटर है. आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ मीन्स फेल, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड बाई स्टेइंग हियर. डॉक्टर कहा कि अगर यह फेल हो गया प्लान, देन अल्बर्ट समझो बहुत नुकसान होगा. बट फर्दर डॉक्टर एडेड दैट all things whatever was done by the Albert planning etc was done for himself and was causing no more harm than to stay there. डॉक्टर कहा कि मेरे समझ से अगर प्लान फेल हुआ तो तुम तो बुरा फंसोगे, लेकिन इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ रुक करके भी तुम्हारा कोई प्रॉफिट नहीं है, तुम लॉस ही कर रहे हो क्योंकि तुम इंटरेस्टेड पढ़ने में नहीं हो. इसलिए यह तो श्योर है कि तुम घर चले जाओगे तो बढ़िया रहेगा, लेकिन डिग्री डिप्लोमा क्या करोगे, दैट इज़ योर मैटर्स नॉट माइन. Well, it's up to you, he said. Doubt will come off, but I can see you're alone much good by staying here. How long would you like me to say you should stay away from school? Would 6 months be all right? Doctor is asking. How many months and days would be sufficient for the Albert to stay at home? Means doctor कह रहा है कि तुम क्या, what did Albert want from the side of doctor, for how many days? Means for how many days doctor should certify that up to this days, 6 months, 3 months, 4 months certificate of the bed rest and nervous system breakdown. डॉक्टर कहा कि कितने दिन का बेड रेस्ट लिख दूँ, 2, 4, 6 महीने, जितना कहो, जैसा तुम मुझसे चाहते हो. दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, एल्बर्ट सेड. इट्स डिपेंड ऑन यू. इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ. तब उस डॉक्टर ने कहा कह रहे नहीं, ये कुछ नहीं है, मैं तो बस एक स्टूडेंट बनने से बचना चाहता हूँ क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में मैंने भी बहुत कुछ ऐसा झेला है. सो आई नो हाउ फील यू फील. सो कह रहे हैं एल्बर्ट कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है. हियर यू आर. डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक. डॉक्टर वेल हैंडेड सर्टिफिकेट ऑफ द नर्वस ब्रेकडाउन सिस्टम एंड सेड बेस्ट ऑफ लक. Nothing, if you have anything to spare, invite you to meal.
आगे डॉक्टर ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू आई थिंक। आगे डॉक्टर का कहती तुम्हारे पास कुछ भी खर्च करने को नहीं है इस मदद के बदले में, तो मत करो, कम से कम एक खाना के लिए तो इनवाइट कर दो। और हमें भी नहीं, केवल यूरी को, क्योंकि उसी ने सब कुछ तुम्हारे लिए भी किया है और हमारे लिए भी किया है। यानी अगर यूरी जो है बहुत अच्छा है हमारे लिए भी तुम्हारे लिए भी, इसलिए अगर तुम चाहो तो दोनों लोगों को, यूरी को इनवाइट करके खाना पीना खिला दो। दैट्स ऑल। हाउ मच, नथिंग इफ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू मील। हाउ मच मीन्स वो पूछा एल्बर्ट कि अब आपकी फ़ीस कितनी हुई, तब वो कहा कि कोई फ़ीस नहीं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, तुम भी हो, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, बस यूरी को खाना खिला दो इनवाइट करके। बहुत बढ़िया फ्रेंड है सबका, मेरा भी तुम्हारा भी। एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर बट ही प्रेटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सुपर। Though Albert had no money to spend, yet with pretension he took Yuri to the hotel to meal. Is not it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. यूरी को सर्टिफिकेट, जो मेडिकल सर्टिफिकेट अब उसे मिला था आराम करने का, ब्रेकडाउन नर्वस का, उसे दिखा दे, कहा कि क्या ये ठीक नहीं है, देखो तो कितना आश्चर्यजनक, कितना मज़ेदार है। यस इट्स फाइन, यूरी एग्रीड। यूरी कहा रहे बहुत बढ़िया है यार, अब क्या कहना, छा गए। 6 months is a good period. This way you would not actually be leaving the school, so if the worst comes to worst you will be able to come back and carry on for your diploma. यूरी कहा कि देखो 6 महीने कम नहीं है, अगर इतने में अपने यहाँ जम गए, बढ़िया होने लगा फेवर में तुम्हारे तो ठीक है, अन्यथा you might come back and start your diploma study in the same school as you deem fit. यूरी कहा कि देखो जो हो गया हो गया, जाओ, 6 महीने कम नहीं है, अगर तुम वहाँ सरवाइव कर लेते हो, हर एक चीज़ अकॉर्डिंग टू योर हो जाती है, तो तुम वहाँ जम जाओ, अपने घर रह जाना, अन्यथा 6 महीने में अगर नुकसान हो रहा है, देख रहे हो कि लॉस हो रहा है, तो तुम आकर के तुरंत अपना स्कूल चला सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिप्लोमा 6 महीने के बाद साल भर में मिल जाएगा। आई शैल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, एल्बर्ट एज्योर्ड हिम। एल्बर्ट कहा कि चाहे जो हो जाए मैं उस स्कूल में वापस तो नहीं जाने वाला। आई एम गोइंग टू टेक द सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट। वो कहा कि सर्टिफिकेट अब मैं टीचर को, हेड दैट इज प्रिंसिपल को दिखाऊंगा, आई विल शो टू द प्रिंसिपल एंड दस विल बी फ्री फ्रॉम दिस स्कूल, दिस प्लेस। डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड हिम। यूरी ने याद दिलाई, कह रहे ठीक है, स्कूल छोड़ने के उससे पहले अपने मैथ टीचर को रेफरेंस दैट इज एप्लीकेशन दे देना कि उन्हें डिप्लोमा मिल जाए, ये प्रॉब्लम है और तुम घर चले जाना। मिस्टर कोच willingly gave Albert the reference he wanted. Mr. Coach was the math teacher when Albert requested for reference. Master Coach kindly, with kindness or with kind heart, allotted him reference. रेफरेंस वही होता है कि नहीं ये हमारे यहाँ पढ़ता था बच्चा, पढ़ने में ठीक है, यहाँ यहाँ तक लेसन पढ़ा है, ऐसा ऐसा है, इसके पास मैथ का नॉलेज है और इसे कहाँ जहाँ ये एडमिशन लेना चाहता है स्कूल ले ले, गुड कैरेक्टर का है। If I say I cannot teach you anymore and probably you will soon be able to teach me, will that be all right? He asked. और मैथ टीचर बोले कि एल्बर्ट, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें तो नहीं पढ़ा सकता लेकिन तुम मुझे ज़रूर पढ़ा सकते हो, तो क्या मैं सही होऊंगा? That's saying too much sir, said Albert. एल्बर्ट कहा, सर आप ये क्या कह रहे हैं सर, आप तो सर हैं। That was the only pretension. It's only the truth, but all right, I will put it more seriously. It was still a glowing reference, and Mr. Coach made the point that Albert was ready immediately to enter a college institute for the study of higher mathematics. मिस्टर कोच मैथ टीचर ने वो प्रिपेयर कर दिया, कह दिया कि नहीं बच्चा पढ़ने में ठीक है, इस लेसन तक या इतना पढ़ाई की है, अगर कोई स्कूल लेना ले तो इस बच्चे का फ्यूचर सुधर जाएगा और यह रिस्पॉन्स अच्छा देगा उसके स्कूल में भी। ऐसा रेफरेंस बना और वह रेफरेंस उन्हें हैंडेड करते हुए कहता कि तुम जिस स्कूल में चाहो हायर स्टडी के लिए जाकर एडमिशन ले सकते हो। I am sorry you are leaving us, although you are wasting your time in my class, he said. मिस्टर कोच माई टीचर कहे कि रे मुझे बहुत दुख है कि यू आर गोइंग फ्रॉम हियर, तुम यहाँ से जा रहे हो, लेकिन ये भी सच है कि तुमने हमें बहुत प्रताड़ित किया है, पूरा क्लास डिस्टर्ब करके रखा। इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। तब एल्बर्ट कह रहा है, सैड एल्बर्ट, कि सर सारे क्लास बेकार गए लेकिन आपके मैथ का क्लास बेकार नहीं गया, यही एक तो क्लास था जिसमें मैं पढ़ा और समझा। बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर? लेकिन सर आगे कह रहा है कि आपको ये कैसे पता
हाउ डिड यू कम टू नो दैट आई एम लिविंग स्कूल, मीन्स ही वॉज लिविंग स्कूल। वो कहा कि सर ठीक है, लेकिन हमने ये तो नहीं कहा कि स्कूल छोड़ना, आपको कैसे पता चला कि मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ। यू वुड नॉट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस इंस्टेंस अदरवाइज। तो द मैथ टीचर कहे कि अगर तुम्हें स्कूल नहीं छोड़ना होता तो तुम इस स्कूल को मुझसे यह रेफरेंस नहीं मांगे होते। रेफरेंस तभी कोई लेता है जब दूसरे स्कूल में जाना होता है, अन्यथा कोई रेफरेंस नहीं मांगता। I thought you would wonder. There is nothing to wonder about Einstein. I knew you were going to leave before you knew yourself. मैं टीचर कहे कि इसमें कोई आश्चर्य की वंडर की बात नहीं है बेटा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम अपने आप को तक को नहीं समझ पाए और अभी तुम स्कूल छोड़ रहे हो। एल्बर्ट वाज पजल्ड, एल्बर्ट वाज सरप्राइज। व्हाट डिड द टीचर मीन, टीचर के कहने का मतलब क्या था। ही सून फाउंड आउट before he had a chance to ask for an interview with the head teacher. He was summoned to the head's room. After leaving the room of math teacher Mr. Coach, Albert was about to go to the office of the principal, but before leaving the room of Mr. Coach, principal himself summoned to the summon में सुधा बुलावा भेजना to the Albert. Well, it saves me the trouble of having to wait an hour or two outside, he thought. चूँकि वहाँ कस्टम था एल्बर्ट के स्कूल में कि टीचर से मिलने से पहले 1-2 घंटे वेट करना होता, तब जाकर चांस आता, मिलने का टाइम आता। लेकिन एल्बर्ट कह रहा है कि चलो आज से स्कूल से यहाँ जान छूट रहा है, बोरिंग होने से, तो 1-2 घंटे वेट भी करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं है। He hardly bothered to wonder why he had been sent for, but vaguely means unclearly, अस्पष्ट रूप से, supposed he was to be punished again for bad work and laziness. Well, he had finished with punishments. अब एल्बर्ट बार बार many times एल्बर्ट was thinking that why had he been called by his principal, and further he was guessing that that might be for the punishment, and further he thought that that was the last day, might be the last day with the punishment, and that will also be well. एल्बर्ट सोचा कि अरे मुझे क्यों भेजा जा रहा है, बुलाया जा रहा है, क्या ज़रूरत है। फिर सोचा कि चलो पनिशमेंट ही ना मिलेगी लेजीनेस के लिए, खराब वर्क के लिए, तो फिर सोचा कि चलो पनिशमेंट मिलेगी, तो क्या हुआ, आज का दिन ही सही लास्ट डेट है, और लास्ट डे पनिशमेंट के साथ ही समाप्त होना सही, कोई बात नहीं। एल्बर्ट ने डिसाइड किया कि मैं सह लूँगा, सुन लूँगा, ढो लूँगा। I am not going to punish you, the head teacher said. Head teacher कहा जाते ही when he entered into the principal's room, head teacher said that he was not going to punish to the Albert. Your work is terrible and I am not prepared to have you here any longer. प्रिंसिपल ने कहा कि तुम्हारा जो कार्य है बड़ा अजीबो गरीब है और अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ स्कूल में रख सकूँ। Einstein, I want you to leave the school now, and teacher suggested to leave the school just then. टीचर कहा कि बस तुम अभी यहाँ से चले जाओ। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट डैश्ड। एल्बर्ट कहा कि अभी स्कूल छोड़ दूँ, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई सेड, यू मीन सेड एल्बर्ट दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड। तब एल्बर्ट कहा कि इसका मतलब कि मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है। मीन्स एल्बर्ट वाज बीइंग एक्साइल्ड फ्रॉम द स्कूल। एल्बर्ट कहा कि इसका मतलब आप लोग मुझे मेरे स्कूल से भगा रहे हैं, निकाल रहे हैं। यही ना हुआ, स्कूल निकासी हो गई मेरी। You can take it that way if you wish, Einstein. The head teacher was not menacing words. The simplest thing will be for you to go of your own accord, and then the question would not arise. Menacing का मतलब है धमकी देते हुए, M-I-N-C-I-N-G. Then, when Albert asked that he was being expelled from school, then head teacher said that Albert, you may think, you can think, take it according to your own. It depends on you. You are free to think about it. But there is one simple thing about you, that you must go from school and live your life according to your own, and then there will be no question against you from anybody. वो कहेगी तुम जा सकते हो, एंजॉय करो, तुम जैसा समझो वैसा समझ सकते हो, लेकिन तुम फ्री हो। अब कोई भी तुम्हारा ऐसे सवाल नहीं करेगा जब तुम अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार जीने लगोगे। बट सैड एल्बर्ट, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड। लेकिन एल्बर्ट ने कहा कि फिर मैंने अपराध क्या किया है। सर देखो कैसे वो बदमाशियाँ कर रहा है, अब जैसे आप लोग करते हो। मीन्स पहले तो वो ये कह रहा है
खुद ही जाना चाह रहा है, बहाने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है, कागज पत्तर भी, लेकिन अभी कह रहे सर मेरी गलती क्या है, कितना पोलाइट सर, हम क्या किए हैं सर, आप लोग कहते हो ना सेम थिंग इज हियर। सो जीनियस मैन। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न। देन प्रिंसिपल सेड दैट व्हेन एवर एल्बर्ट बिकम्स प्रेजेंट in classroom, due to his presence the whole class including teacher and all students are disturbed, सभी डिस्टर्ब रहते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती। You refuse to learn, you are in constant rebellion, constant rebellion means लगातार विद्रोह करना, means teacher is saying that Albert was continuously rebelling the whole class and class system and soon serious work can be done while you are there। एंड आगे कह रहे हैं वो कि जब तक तुम रहोगे उस क्लास में तब तक कोई सीरियस और बढ़िया कार्य नहीं किया जा सकता है। एल्बर्ट फेल्ड द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट। अब एल्बर्ट सोच रहा है कि अरे यार मैं निकाल दिया जाऊंगा यहाँ से, तो जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया हूँ उसका भी अब लॉस हो जाएगा। अब उन्हें इससे लगा इसे जल के ख़त्म हो गया जेब में। क्यों? क्योंकि जब स्कूल से निकाल दिया गया तो मेडिकल वाले का यूज़ ही नहीं रहा। मान लो रेफरेंस मिल भी गया सर को, उनको एल्बर्ट को मैथ टीचर से, तो इनकी प्लानिंग ये थी कि भाई अगर वहाँ सेट नहीं हुए तो वापस आकर के हम कर सकते हैं यहाँ पे एडमिशन पढ़ाई। वो तो चला गया। और दूसरा रेफरेंस लेते तो स्कूल का तो रेफरेंस ले गया कि हायर एजुकेशन में मैथ पढ़ने के लिए तैयार है, ठीक है बच्चा, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा भी एक रेफरेंस दिया था कि यह बच्चा गुड कैरेक्टर का है या जाए, तो अब तो वहाँ पे उसे एक्सपेल्ड एग्जाइल किया जा रहा था, तो वहाँ लिखा जाता है कि इस बच्चे को निष्कासित किया जाता है। तब मेडिकल सब बेकार हो गया बेचारे का। ही वाज टोटली इन हेडेक पेंडेक। व्हाट ही बर्निंग होल। आई वाज गोइंग टू लिव एनीवे ही सेड। उसने कहा ठीक है सर अब मैं जा रहा हूँ, जो होगा होगा। देन वी आर इन अग्रीमेंट एट लीस्ट आइंस्टीन द हेड साइड। For a moment Albert was tempted to tell the man what he thought of him and of his school. Then he stopped himself without another word. Holding his head high, he stalked out. जब अल्बर्ट ने कहा कि ठीक है सर अब मैं जा रहा हूँ, जब आपने निकाल ही दिया है, तो फिर टीचर कहे कि तब मैं इसका मतलब एग्रीमेंट समझूँ कि नहीं, तुम भी तैयार हो स्कूल छोड़ने के लिए, और मान गए अपनी गलती। पहले तो अल्बर्ट फिर सोचा कि इनको अच्छे से अब जवाब दूँ, लेकिन उसके बाद तुरंत रोक लिया खुद को कि ज़्यादा बोला नहीं जाता। एनी हाउ ही स्टेप्ड टुवर्ड्स द आउटसाइड फ्रॉम द प्रिंसिपल रूम। शट द डोर आफ्टर यू शाउटेड द हेड चिल्लाए, ऑर्डर टू शट द डोर। और यू कैन से बिफोर एल्बर्ट हेड टीचर रिक्वेस्टेड। हालांकि वहाँ पे ऑर्डर का भाव था, टीचर थे वो, लेकिन अब एल्बर्ट जैसे व्यक्ति के लिए और आप जैसे लोगों के लिए वो तो एक रिक्वेस्ट है कि बेटा कैसे भी एहसान करना बंद कर देना प्लीज़। सो ही रिक्वेस्टेड टू shut the door by the principal. Albert ignored him and Albert did not accepted request of even the principal. प्रिंसिपल का रिक्वेस्ट भी एल्बर्ट नहीं माना, बल्कि उसने उसे भी इग्नोर करके चला गया। तो भाई अब आप लोगों के सामने रिक्वेस्ट ही है हम लोगों का, ऑर्डर करने की कहाँ चलता है। वो भी जब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो लोग गाना बजाते हैं, लोग क्या क्या करते हैं, पूरा सीरियस वीडियो 28-30 मिनट का बेकार कर देते हैं, डिलीट करना पड़ जाता है। तो रिक्वेस्ट ही है भैया पढ़िए। सेम थिंग इज हियर आल्सो इन बुक। ही वॉक्ड स्ट्रेट ऑन आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स। अब वह गर्व से जहाँ जिस स्कूल में 5 साल बिताया था उस स्कूल से अब गर्व से बाहर निकल रहा था। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट अ लास्ट लुक। वह एकदम अपना सर मुड़ाने के लिए तैयार नहीं था, कम से कम लास्ट झलक, लुक मीन्स झलक तो देख लूँ, उसकी तो जान बची जहान बची। He could not think of anyone he wanted to say goodbye to. वह किसी को गुड बाय भी नहीं कहना चाहता था। Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town he had come to hate almost as much as the school. कह रहा है this passage saying that after returning from school without saying bye and having last glance of the school, when he reached at his lodge, then he wished only to meet to the Yuri. To say bye because he liked him. Albert liked Yuri and Yuri also helped him. So Elsa was back in Berlin and he had no other real friends. एक एल्सा थी जो बर्लिन में थी, इसके घर पे सिस्टर थी जो इसकी कज़िन, इसके सिवा आइंस्टीन का और कोई दोस्त नहीं था।
गुड बाय एंड गुड लक सैड यूरी व्हेन ही लेफ्ट। यूरी ने कहा ओके फ्रेंड एल्बर्ट, गुड बाय, गुड लक, मे गॉड गिव लॉन्ग लाइफ टू यू एंड अ गुड विजडम आल्सो टू यू। यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री, आई थिंक आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर। यूरी ने एक्सप्रेस की अपनी भावनाएं विचार की। आइंस्टीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जहाँ रहोगे वहाँ खुश रहोगे, सुखी रहोगे। और इस तरह से यह लास्ट पैरा जो था आपका कंप्लीट हुआ दिस फोर्थ लेसन। From tomorrow I shall start the next lesson. If you have any query then ask, otherwise I will say bye.